China, 67%. That's tariffs. Tariffs continue because without the tariffs, our nation would be imperiled. Is putting up $550 billion in order to lower their tariffs a little bit. That way they have a little bit lower tariff. क्या भारत पर अमेरिका का 100% टैरिफ लगने वाला है? क्या अमेरिका के इस कदम से भारत के व्यापार को बहुत बड़ा झटका लगेगा? अमेरिकी सीनेट में एक ऐसा बिल पास हुआ है जिसने भारत समेत दुनिया के 5 बड़े देशों की चिंता बढ़ा दी है। दावा है कि रूसी तेल खरीदने वाले 5 देशों पर कार्रवाई होगी। इस बिल पर 86 सांसदों ने पक्ष में वोट किया, जबकि सिर्फ 11 विरोध में खड़े हुए। इस बिल की सबसे बड़ी बात यह है कि इसे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियों का समर्थन मिला है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझते हैं। अमेरिकी सीनेट में पास हुए इस बिल के मुताबिक रूस से तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले 5 देशों पर 100% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। इन 5 देशों की लिस्ट में भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि ये देश रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल और गैस खरीद रहे हैं, जिससे रूस को अरबों डॉलर की कमाई हो रही है। अमेरिका का तर्क है कि इसी कमाई के दम पर रूस यूक्रेन के खिलाफ इतने लंबे समय से जंग लड़ पा रहा है। इसीलिए अमेरिका रूस की इस आर्थिक ताकत को तोड़ना चाहता है। मजेदार बात यह है कि 23 जुलाई को जब इस बिल का शुरुआती ड्राफ्ट तैयार किया गया था, तब इसमें 500% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था, जिसे बाद में घटाकर 100% कर दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिल अभी सीनेट से पास हुआ है, कानून नहीं बना है। अब इसे अमेरिकी संसद के निचले सदन में भेजा जाएगा। वहां से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अगर यह बिल पास होता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति को 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने और अमेरिकी बाजार में आने वाले रूसी सामान पर 500% तक टैरिफ लगाने की ताकत मिल जाएगी। हालांकि इसमें एक वेवर या फिर छूट का अधिकार भी है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को लगता है कि किसी देश पर टैरिफ लगाने से खुद अमेरिका का नुकसान होगा, तो वो इसे टाल सकते हैं। इस बिल का नाम भी बदल दिया गया है। अब इस बिल का नाम दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर के नाम पर लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड एक्ट ऑफ 2026 रखा गया है। इस पूरे मुद्दे पर विदेश मामलों के जानकार सुशांत सरीन की क्या राय है, आइए आपको सुनाते हैं। Donald Trump had imposed a 25% tariff on India simply because we were buying Russian oil. Now they have passed this particular bill because of that senator who died, Lindsey Graham. I haven't seen the text of the bill, but generally what we have seen is that these kind of bills have opt-out clauses where the president can certify that he is not going to implement this particular law simply because it's not in the American national interest. Now, they would certainly have that opt-out clause. The question now is, it's not just about India, China, there are 3 or 4 more other countries. Will the Americans impose the same law on China of a 100% tariff? And chances are that they will not, because the Chinese will retaliate and the Americans, we've seen Trump impose the tariffs on us, but he did not impose it on China. Now, if something like that was to happen, then it clearly means that the Americans are targeting India. And, you know, I think India needs to get over that that sense that this is a temporary phenomena. It's a temporary kind of a problem which has come between India and the United States. I think this is signaling a much more permanent kind of a breach. That does not mean that the economic relationship is totally gone. But if you are going to start imposing a 100% tariff, then the economic relationship does not exist anymore. The question is, what does India do about it? I think just as India has thought about de-risking itself from China, I think India now needs to start moving towards de-risking from the United States as well. Because very clearly the US under Trump and maybe even after Trump will remain a hostile power. We have seen indications of that from the US Deputy Secretary of State, who came to India and said, we are not going to let India rise and make the same mistake that we made with China. Not that the US can stop India's rise or the US is responsible for China's rise. That's nonsense. But that's what the Americans believe in, and we should be reconciled to the fact that this is the direction in which the Americans are going to go.
which means that we need to get our own act together. अब सवाल उठता है कि भारत अमेरिका की नाराजगी के बावजूद रूस से इतना तेल क्यों खरीदता है। इसके पीछे सीधे सीधे देश का आर्थिक फायदा है। सबसे पहली वजह है सस्ता तेल। 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर बैन लगाया, तो रूस ने भारत और चीन को भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेचना शुरू कर दिया। दूसरी वजह है भारी जरूरत। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात यानी इंपोर्ट करता है, इसलिए जहां सस्ता तेल मिलता है भारत वहीं से खरीदता है। वैसे यूक्रेन युद्ध से पहले भारत सबसे ज्यादा तेल इराक से खरीदता था। तीसरी वजह है रिफाइनरियों को फायदा। रिलायंस, इंडियन ऑयल और नायरा जैसी भारतीय रिफाइनरियों को सस्ता कच्चा तेल मिलता है, जिससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट घटती है। चौथी वजह है प्रोसेस्ड ऑयल बेचकर कमाई। भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदता है, उसे अपनी रिफाइनरियों में पेट्रोल, डीजल जैसे प्रोडक्ट्स में बदलता है और फिर दूसरे देशों को महंगे दामों में बेचकर मोटा मुनाफा कमाता है। अगर साल 2026 के शुरुआती 6 महीनों के आंकड़े देखें तो भारत का रूसी तेल आयात लगातार बढ़ता चला गया। जनवरी की बात करें तो 10.9 लाख बैरल प्रति दिन खरीदता था भारत। फरवरी की बात करें तो 11.6 लाख बैरल प्रति दिन। मार्च की अगर बात करते हैं तो 20 लाख बैरल प्रति दिन। अप्रैल की बात करें तो 16 लाख बैरल प्रति दिन। मई की बात करते हैं तो 19 लाख बैरल प्रति दिन। जून की अगर बात करें तो रूस से हमने रिकॉर्ड 26.1 लाख बैरल प्रति दिन जो है वो कच्चा तेल खरीदा है। यानी अकेले जून के महीने में भारत में आयात होने वाले हर 2 बैरल तेल में से 1 बैरल से ज्यादा तेल रूस से आया है। भारत को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? अगर अमेरिका 100% टैरिफ भारत पर लगाता है तो इसका सबसे बड़ा असर भारत और अमेरिका के बीच होने वाले कारोबार पर पड़ेगा। भारत और अमेरिका के बीच कुल ट्रेड 11 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें भारत अपना सामान बेचकर 7.35 लाख करोड़ रुपए कमाता है, तो अमेरिका की भारत से 3.46 लाख करोड़ रुपए की कमाई होती है। भारत अमेरिका को मुख्य रूप से दवाइयां, टेलीकॉम डिवाइसेस, ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कपड़े बेचता है। अमेरिका से भारत में कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोयला, हीरे और विमान अंतरिक्ष यान के पुर्जे आते हैं। भारत अमेरिका को सामान बेचने में फायदे में रहता है, लेकिन अगर 100% टैरिफ लागू हो गया तो भारत के फार्मा, कपड़ा, ज्वेलरी और पेट्रोलियम निर्यात पूरी तरह ठप हो सकते हैं या अमेरिका में बेहद महंगे हो जाएंगे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। अब आगे क्या होगा? यूरोपीय देशों को अमेरिका ने इस बिल में राहत दी है, क्योंकि वे अपनी जरूरत का 15% से कम गैस रूस से खरीदते हैं। लेकिन भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार सीधे अमेरिका के निशाने पर हैं। अब देखना होगा कि अमेरिकी संसद का निचला सदन इस बिल पर क्या फैसला लेता है और भारत सरकार अपनी डिप्लोमेसी से इस संकट को कैसे संभालती है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों को पहले पाने के लिए जनसत्ता को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।